Dear parents, children, Assalamu alaikum, good evening, and a very happy Father's Day to all of you. It's a great honor for me indeed to give you a brief description on Plug-in Youth Wing. Plug-in Youth Wing is the second chapter of Plug-in Event Managers, and this Youth Wing is basically a team of energetic and active members of Hyderabad. A brief background of Plug-in Youth Wing at University of East Latifabad that was given by Mr. Waqar Ahmed Waqar, and the topic of that workshop was Good Citizens are Good Leaders. A brief introduction जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि we are not a political group, we are not a religious group, we are a group of youth जो कि यूथ के लिए कुछ करना चाहते हैं और हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं. We are those who want to build Pakistan, want to make its identity. So that is our main motive. Now there is a common philosophy that we all share. Our main philosophy is engage youth in extracurricular activities. Let's not enrage them. Dream, feel, believe, and achieve it. The main objective is we are there to revise the basics. Then we are there to organize events as well, which can expose the talent. And then we are there for social awareness, we are there for education, we are there for counseling, and so on. We have a list of future projects. I'd like to invite Ms. Maha Umar, a very active and energetic member of Plug-in Youth Wing. This is Maha Umar, and I'm proud to introduce myself as a Plug-in Youth Wing member. After the marvelous efforts of Plug-in Event Management, it's an honor for us to introduce this project first time through the platform of Plug-in Youth Wing. Our mega project, all Hyderabad trilingual open declamation contest, conducted in 3 different languages. That's English, Urdu and Sindhi. This project completed 2 rounds. The first one is the preliminary round and the second one is the final round. The contestants will first go through the preliminary round and then final. 27 contestants will be chosen in preliminary round, which go through the final round. Age categories are as follows, as you all see here. The first set is from 10 to 15 years old. The second set is from 15 to 20 years old. And the third set belongs to 20 to 25 years old. Expected date. We are planning this program since 2 to 3 months. But the expected date, the show time of the project, is the first week of the month August. The expected venue is the open air theatre at Anibagh because it's convenient for all and it is easy to reach for everyone. Thank you for your kind cooperation, and it's been a privilege for us to have all the fathers joining us today and making this event even more special for us. Thank you for your attention. It's been so thank you and Allah Hafiz. Last but not the least, happy Father's Day to all. Carry her to the window and show her the town where they lived. He would talk to her about the night watchman, about the milkman who would already be out delivering the milk, about the baker making their daily breads. Her father was trying to drive the monster with which he had filled the night and replace them with the people who kept watch over the darkness. To the cake cutting ceremony, which is in accordance with this day's celebration, but this cake cutting ceremony is a surprise. We have a cake, but we do not know who is going to cut it. Every parent, every child is very special for us, but this thing, Waqar is going to announce. He's going to come up on stage and reveal the surprise. Waqar, please. फादर्स डे पर इतना मर्तबा मेरा नाम लिया जा रहा है, ये सब कुछ मैंने नहीं किया, इन्होंने रट लिया है एक नाम. जहाँ कोई आगे आयत की ज़रूरत होती है वहाँ वक़ार अहमद वक़ार लगा देते हैं. ये जो मसला है ये वाक़अतन एक मसला था, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये केक किससे कटवाया जाए. क्या एक ऐसी शख्सियत से जो पूरे हैदराबाद का उस्ताद हो, या ऐसी शख्सियत जिसको हम सब असातिज़ा मानते हैं, कोई बच्चा एक
नाम पे मेरी उंगली रुक गई कि वो हमारी यूथ विंग का एक मेंबर है, बट ही hasn't got his Always, please. अगस्त 1983 मेरे स्कूल में जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक तकरीब का अहतमाम है। तकारीर का सिलसिला शुरू होता है, तलबा व तालिबात अहमियत आज़ादी पर रोशनी डालते हैं। मेरा नाम भी लाउड स्पीकर पर पुकारा जाता है कि मुकर्रिरीन में सबसे कम उम्र तालिब इल्म मुकर्रिर जो जमात दुव्वम में ज़ेर तालीम है अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। वक़ार अहमद। मैं अपने वालिद मोहतरम की लिखी हुई तकरीर जिसे अज़बर कराने में वालिदा मोहतरमा ने बहुत कोशिश की थी, मैंने अपने मासूमाना अंदाज में की। आज का दिन हमारे लिए खुशी और मसरत का दिन है। आज वही तारीख़ है जिस तारीख़ को अल्लामा इक़बाल का ख्वाब पूरा हुआ हो, और ख़ुसूसन वो शेर जिसमें वालिदा मोहतरमा के बताए हुए अंदाज में याद करने की मुसलसल मशक़ करता रहा था। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे दाबोगे उतना ही ये उभरेगा। पर मासूमियत से अपने हाथों को इस तौर फ़ज़ा में बुलंद करता कि वो लफ्ज़ों के आईनादार बन जाते। बाद तकरीर मेहमान ख़ुसूसी और दीगर शुरकाए तकरीर ने मुझे बहुत प्यार किया, दाद दी, खूब हौसला अफजाई हुई। वालिद मोहतरम ने बहुत प्यार किया और इंतहाई मसरत का इजहार किया। फिर मैं उनकी उंगली पकड़कर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में बाज़ार में वो रुके और मुझसे पूछा कि बताओ बतौर इनाम क्या लोगे। ये एक सादा सा सवाल था, मगर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये एक निहायत मुश्किल काम है। दुकानों के हुजूम में खिलौनों की दुकान पर से कोई महंगा सा खिलौना पसंद कर लूँ, कोई खूबसूरत सा कलम ले लिया जाए या कोई मिठाई ले ली। इसलिए बाज़ार की तमाम दुकानों का जायज़ा बड़ी गहरी नज़रों से ले रहा था और ये सोच रहा था कि किसी लाफानी शय का इंतखाब कर लूँ। मगर ये तो पूरा बाज़ार ही फ़ानी है। किसी को घर पहुँचने पर छीना झपटी का शिकार हो जाना है, तो किसी को सालों के लिए शोकेस में सज जाना है। इसी कश्मकश में जब लाफानी शे का ज़ौक़ दीद बढ़ा, जुस्तजू परवान चढ़ी, शौक़ ने उरूज पाया, तलब जुनून बनी, ज़ौक़ दीद ने रगोपे में हिजान बर्पा किया, तो एक दुकान में मुझे वो नज़र आ गया, वो जिसको फ़ना नहीं, वो जो लिबास मजाजियत से पाक है, वो लिबास इश्क में मुझ पर इल्क़ा हो गया। मैं बौखला गया। मैंने सोचा इसका मुकम्मल मुशाहिदा कर लूँ, ज़हन व नज़र में मुंजमिद कर लूँ। बस ये सोचना था कि वो एकदम गायब हो गया, या शायद वो मौजूद था मगर मेरी नज़र इस काबिल न थी। एक इज़्तिराब मुझ पर तारी हुआ, सुकूत टूट गया, दिल ने कफ़स की सारी जंजीरें तोड़ दी, ज़ौक़ दीद तूफ़ान बन गया, ख़यालात का इंतशार ख़त्म हो चुका था, खिरत सहमी हुई थी, शौक़ जब मेरी नमाज़ों का इमाम बन गया, क़ल्ब को बसारत मिली और बसीरत बन गई, तो वो फिर आश्कार हो गया। मगर इस मरतबा वो जानदार और बेजान हर शय में ज़ाहिर था, हर जगह वही नज़र आ रहा था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह अब्बू से कह दूँ कि मुझे ये ले दें। मेरे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका था। वो तकरीर जो सोने के दौरान भी मेरे होठों पे मचलती रहती थी, एक लफ्ज़ नहीं मिल रहा था। न जाने कितने लम्हात सालों को समेटे गुजर गए। जब अब्बू की तरफ से कोई जवाब न आया, मैंने गर्दन घुमाई तो देखा कि मैं इश्क की उंगली पकड़े खड़ा था। अच्छा सुहान, आपको पता है कि हमारे सब अब्बू के बेटों और पापा की परियों ने अपने अपने अब्बू के लिए कुछ सरप्राइज़ रखा है, जो कि कुछ देर में वजीहा और रिफत रिवील करने वाली है। हम बच्चे अपने पेरेंट्स से अपने प्यार का इजहार इन्हीं छोटे छोटे लम्हात से करते हैं। और जी ये हमारा स्टाइल है जी। वजीहा एंड रिफत, प्लीज कम ऑन द स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, वजीहा एंड रिफत।